Good evening, everyone. Welcome everyone for this session. And thank you very much for joining us for this interesting session on environmental toxins and our health. हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि डिजीजेस, मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस से सब बढ़ता जा रहा है। जेनेटिक्स से वही सेम है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की थी, पर डिजीजेस बढ़ रही हैं और नीदर डॉक्टर्स आर हैप्पी और पेशेंट्स आर हैप्पी बिकॉज हम कहीं एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। चेंजेस क्या हुई हैं? चेंजेस हुई हैं हमारी डाइटरी हैबिट्स की, हमारे लाइफस्टाइल की। स्ट्रेस बढ़ गया है, प्लस the other contributory part is toxins. Do you feel that toxins are related to not only your physical health, they're also related to our mental health? So for today's session, we have our senior with us, Dr. R.K. Dua sir. Dr. R.K. Dua, he is a consultant surgeon, and he is professor of surgery, and he is working at Sharda Devi Memorial Hospital. Welcome sir for this interesting session, and we are really happy that you have joined us for this session, and please enlighten us with your knowledge about toxins and our health. Thank you very much, Dr. Aarti, and I also thank the audience who is watching and they are sparing their valuable time in watching this. And I want to give the maximum valuable information that I can share with them. So main thing is that with the increasing lifestyle, so when we go back to our ancient times, we have survived all those harsh conditions only that we had in our medical armamentarium, that all were the natural products. So as we are moving towards more technology driven society, so we are consciously or unconsciously we are adding many things that are not required by our body. Simply if आप एक चीज़ उठा के देखिए, अपना टूथपेस्ट उठा के देखिए, बॉडी लोशंस उठा के देखिए, अपने मॉइस्चराइज़र उठा के देखिए। कहने को तो ये मॉइस्चराइज़र हैं आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, पर उसके अंदर केमिकल्स जो इतने हैं, क्या उनकी वाकई ज़रूरत है हमारे को? शायद नहीं है। सिमिलरली वी आर यूजिंग टॉयलेट क्लीनर, वी आर यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ other cleaners which are acidic in nature or alkali in nature. So these are somewhere going into the environment and ultimately returning back into the food cycle, and we are consuming that. So if we look into our lifestyle, so we are consuming many toxins directly or indirectly. खाना उठा के देख लीजिए, अब हम खाना रखते हैं फ्रिज में, रखने के बाद भी हमारे पास कितने 24 घंटे 48 घंटे, उसके बाद वो खाने लायक नहीं रहता। लेकिन पैकेज फूड जो हम जितना भी है 6 महीने 1.5 साल 2 साल की उनकी एक्सपायरी होती है। तो वाई दीज फूड्स हैव सो मच लॉन्ग शेल्फ लाइफ? बिकॉज इनके अंदर क्या है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होने की वजह से इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए रियली दीज आर हेल्दी और नॉट? वी आर टेकिंग चिकन, वी आर टेकिंग प्रोटीन्स, along with that proteins, that healthy nutrition, we are also consuming so lot of chemicals. दूसरी चीज़ है, हम अपनी बॉडी के लिए कुछ सोचते तो नहीं है, लेकिन हमारे को ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट ऑफ आवर टंग वी आर कंज्यूमिंग एवरीथिंग. Similarly in our lifestyle, we have so lot of furniture in home. So that furniture contains many chemicals which are, you can say, slowly releasing into our environment, and we are continuously inhaling that toxins. So कहाँ से आते हैं वो toxins? प्लाईवुड की बहुत सारी एड्स आपने देखे होंगे, टर्माइट प्रूफ, फलाना प्रूफ, फायर प्रूफ। तो वो कैसे बनते हैं ये सारे प्रूफ? ये प्रूफ यहीं से बनते हैं कि बिकॉज दे हैव सो मैनी एडेड केमिकल्स, and slowly these chemicals are being released into your environment and we are inhaling. So मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूँ आपको
आप कभी भी एक नया फर्नीचर बनवाइए प्लाईवुड का, and after 2 days you open the drawer, you will have a formalin kind of smell in that drawer. That smell in the fresh furniture will go after many months or years. So if that drawer remains closed, so these are the chemicals which are continuously being released into the environment and we are inhaling. So this is one example. Second, प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अंदर चला गया है कि उसके बिना हम रहना सोच भी नहीं सकते। हम अभी भी जो सामान यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, माइक यूज़ कर रहे हैं, 80% ऑफ द मटेरियल इज़ प्लास्टिक। सो वो प्लास्टिक को बनाने के लिए जितने केमिकल्स यूज़ होते हैं, दीज केमिकल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोइंग इनटू द एनवायरनमेंट एंड वी आर कंज्यूमिंग दैट। एब्सोल्युटली राइट। थर्ड थिंग, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, उसके लिए हमारे पास ज़मीन तो एक निश्चित मात्रा में है, लेकिन हमारे को उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फसल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे को अच्छे फर्टिलाइज़र चाहिए, मैन्योर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, अदरवाइज दैट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द पेस्ट्स। सो अब उसको पेस्ट्स को मारने के लिए डायरेक्टली वी आर किलिंग आवरसेल्व्स। पंजाब में हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के लिए हमने इतना फर्टिलाइज़र यूज़ किया। अभी पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है जिसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं। दैट ट्रेन मूव फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ फ्रॉम मुक्तसर टू गोइंग टू अमृतसर और समथिंग लाइक दैट। सो ड्यूरिंग हरित क्रांति इतना पेस्टिसाइड और इतना केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया गया कि पानी के अंदर इतनी मात्रा नाइट्रेट्स की, कार्सिनोजेंस की है कि वो उनकी लाइफ जीना मुश्किल हो गया है। तो उसी तरह से अब या तो हम इसी तरह से जीते जाएं या हम कुछ थोड़े से जागरूक हों कि ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू करें। अब दूसरा एक और एग्जांपल लीजिए आप। इतने सारे केमिकल्स आपकी फैक्ट्रीज़ में हैं, अल्टीमेटली जितने भी रेगुलेशंस हमने लगा लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी वो फैक्ट्री का जो वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्पोज किया जा रहा है। उसके अंदर आपका मर्करी मिल जाएगा, लेड मिल जाएगा, आर्सेनिक मिल जाएगा। दीज आर द 3 वेरी टॉक्सिक एलिमेंट्स विच आर सो डैमेजिंग टू आवर ब्रेन, टू आवर लीवर, किडनी, and even these can cause premature death and congenital deformities. Absolutely. So in US they have got some regulation regarding the consumption of fish. So they have studied that these fish contain, maybe depending upon the water to water, trace amount of mercury. So they have guidelines that these pregnant females should consume the fish or not. So इस तरह से हम जो अगर इतने नेगलेक्ट हो जाएंगे तो फिर एक टाइम वो आएगा कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। एग्री। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, ADHD, hyperactivity, the concentration problems or autism, it all have association with the toxin exposure and impaired immunity because of the toxin exposure. Really right. तो ये सारी चीज़ें हमारे को कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं कम से कम वहाँ तो करें। वी कैन स्टॉप यूजिंग कमर्शियल प्रोडक्ट्स, वी कैन स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स विच आर मोर नेचुरल। सो वी शुड हैव वन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है या हमारे घरों से जो वेस्ट जा रहा है, तो हम कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें कि वी शुड यूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द टॉयलेट्स एंड किचन मटेरियल। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। मार्केट में हमारे को कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो दीज आर वेरी मच एनवायरनमेंट फ्रेंडली एज वेल एज ह्यूमन फ्रेंडली। सो वी शुड ट्राई टू यूज़ दोज थिंग्स। आप सही कह रहे हैं कि टॉक्सिन फ्री लाइफ तो पॉसिबल नहीं है, बट लो टॉक्सिन लिविंग इज पॉसिबल। लो टॉक्सिन लिविंग इज पॉसिबल। तो उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो अगर हम एक चाहें कि इसके अगेंस्ट कोई लॉ बन जाए जो एक एनफोर्समेंट हो, तो लॉ अथॉरिटीज़ भी एक ये मानती हैं कि यू हैव टू प्रूव दैट दिस केमिकल इज़ कॉजिंग दिस डिजीज़। तो ये कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक किसी केमिकल को, किसी प्रोडक्ट को एक कल्प्रिट बना दिया जाए
कि all the diseases, all the malignancies, all the mental problems are because of this chemical, because we have so many chemicals and the reaction and the side effects of all these are intermingling. So it Absolutely. becomes many times very difficult to pinpoint that this chemical is causing this problem. So until unless we can prove, we cannot force the authorities to have some kind of law to restrict those products. So मेरा एक सिंपल सा एक मैसेज पब्लिक के लिए ये है, जितना भी हम कर सकते हैं, जो अगर हमारे सामने लग रहा है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वी कैन रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज़. अथॉरिटीज़ कौन है? हम लोग ही तो हैं. हमारे को एक इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना. अब ये तो एक बात हो गई कि हमारे पास इतने सारे केमिकल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स भी इतने सारे हैं, हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम अवॉइड कर सकते हैं, आग जलाना, सड़क के किनारे टायर जला दिए, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं. लोग क्या करते हैं, हाथ सेकने के लिए टायर जला दिए, एंड दीज टायर्स आर सो टॉक्सिक दैट यू कैन नॉट इमेजिन. Toxic particulates we are inhaling, toxic fumes we are inhaling, and we are not inhaling ourselves, we are also just for our production of heat, and we are also causing the other public to consume that toxins. So there are many things that we can avoid. How these toxins cause health issues? These toxins, देखिए अब हेल्थ इश्यूज़ के अंदर अगर हम देखें तो हेल्थ का क्या है, पार्टिकुलेट मैटर हैं, स्मोकिंग है, स्मोक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मोक्स दैट आर एमिनेटिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज. सो अल्टीमेटली दीज टॉक्सिन्स कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ द टॉक्सिन पार्टिकुलेट मैटर. सेकेंड, दीज कैन कॉज your damage to the nervous system, mental retardation, all these things, psychological problems that can also arise from that, cardiac problems, liver problems, and renal problems. Directly or indirectly, this has been proved that these toxins can cause these kind of health issues. So there are various health issues that we can avoid by just avoiding these chemicals going into the water bodies, these chemicals going into the environment. We can apply the filters in the chimneys. So there are measures that we can do. Would you like to share your PPT, sir? Yeah. Can you allow? Yes. So just a minute. You are able to? So Yes, what are the substance and organism that negatively affect human health? So that not only negatively affect the human health, but these are also dangerous for the animals also. As we know, as we have read in biology from school days till you can say the medical colleges, that everything that is given to us by the nature, that is essential for the survival of human beings. Whether these are birds, these are animals, these are plants. So we cannot survive, we cannot think of our survival. हमारे लिए ये ज़िंदगी इन सब के लिए बिना बड़ी मुश्किल है. So अब जो अगर हम देखें तो these are the poisonous chemicals जो हम डिस्कस कर चुके हैं. Physical materials like dust particles, smokes, and there are organisms that can cause the disease. And one thing that you will not find, so these are the toxins that can cause the disease process. So that may be mental disease, that may be your psychological problems, neurological problems. So what are these negative toxins? So these are the things that we may or may not be able to totally avoid, but there are certain things that we can totally involve in our life. So first thing that I want to add is non-exposure to sunlight, and away from the nature, away from family and friends, inhaling recirculating air in the air-conditioned halls and cubicles, long exposure to screens, and lack of physical activity. So whatever is our immunity, whatever the toxic things that is caused by the environmental poisons,
Added over to that, these things can also add many psychological and physical problems associated with the human life. So non-exposure to sunlight, everyone knows that all those white collar people are सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, सब कुछ है. जब भी टेस्ट करवा लीजिए, जो मज़दूर धूप में काम कर रहा है उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी एज़ कम्पेयर टू वाइट कॉलर पीपल. अवे फ्रॉम नेचर, हम जिंदगी हमारी जो बनी है, जो हम डेवलपमेंट जो भी हुआ है, इंसान का हो, एनिमल्स का हो, प्लांट्स का हो, यह नेचर में ही हुआ है. सो वी आर टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेचर. जो अगर हम जितना नेचर से दूर जाते जाएंगे हमारी तकलीफ़ें उतनी ही बढ़ती जाएंगी. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एज वी नो दैट वी आर ए सोशल एनिमल. सो जब भी आपको लगता है, कभी आप किसी से इरिटेट हो जाते हैं, कहते हैं यार क्यों ज़िंदगी में है ये, लेकिन जब वही बंदा आपकी ज़िंदगी में 2 दिन के लिए, 4 दिन के चला जाता है तो आपको कितना अकेलापन और कितना वो अच्छा नहीं लगता. सो सिमिलरली elderly people, when the children go out, so these elderly people just want a company that they can share their feelings. वो नहीं है तो उनकी और प्रॉब्लम जो एजिंग प्रॉब्लम है that is enhanced. Recirculating that air that is contained. So all these problems are, you can say, directly or indirectly affecting our life. And then the major threats I have already discussed. Major threats are carcinogens and the system, cardiovascular, endocrine system, respiratory, immune and reproductive system. So I have already discussed that these are the systems are mainly involved by the environmental toxins, and these toxins can cause damage to the human body and decrease the lifespan of the human body. Just by changing the lifestyle, by increasing the physical activity and outdoor activity, we can reduce the effects of these toxins. So ज़रूरी नहीं है कि ये टॉक्सिन हमारे ही मैन मेड हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स नेचुरली भी हैं हमारे पास, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, दीज आर प्रेजेंट इन द नेचर. एनिमल वेनम, सांप का जहर हो गया, बिच्छू हो गए, मशरूम्स, देयर आर मैनी टॉक्सिक मशरूम्स आर देयर. Mold, many types of fungus that we find that these fungi are present. Naturally occurring elements of these, arsenic is the most toxic element that is present in the nature, and it is present, you can say, I have already discussed wood preservative, pesticides, feed additives. These feed additives are used in, you can say, killing the animals or rat or these kind of animals. Car batteries and semiconductors. So we are in a age that we are moving towards electric cars. तो इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में तो हर कोई बोलता है, लेकिन ये कभी किसी ने सोचा कि जो आज तक हम लेड बैटरीज जो हैं, अभी तक हम उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई प्रॉपर चैनल नहीं बना पाए हैं, और उसके बाद जब बैटरीज की संख्या इतनी बढ़ जाएगी तो उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे. आर्सेनिक के अलावा उसके अंदर आपका लिथियम और मैंने केमिकल्स होंगे तो उनको, सो दीज आर टॉक्सिक केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट. डेंजर्स एसोसिएटेड विद, वही मैंने बताया कि अमाउंट एंड एक्सपोजर टाइम. अमाउंट हम कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक्सपोजर टाइम भी हम कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एक्सपोजर वी आर हैविंग. कुछ क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं, जैसे अब धूल मिट्टी वाली जगह पे जा रहे हैं, धुआं जहाँ है वहाँ आप जा रहे हैं तो आप मास्क पहन लीजिए, या उस जगह को अवॉइड करिए जब तक वहाँ धुआं है. तो इस तरह से करके हम बहुत सारी चीज़ें या केमिकल्स जो हम घर पे यूज़ कर रहे हैं, या घर पे हमारे पास फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा है, तो वी शुड हैव रूम्स विद क्रॉस वेंटिलेशन. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे दैट रूम शुड रिमेन ओपन. जो भी उसके अंदर फ्रिज फर्नीचर से जो भी केमिकल्स निकल रहे हैं तो एटलीस्ट वो डाइल्यूट हो जाएंगे, अंदर कंसनट्रेटेड नहीं रहेंगे. शाम को जब घर में हम एंटर करते हैं, वी आर कंज्यूमिंग दैट कंसनट्रेटेड टॉक्सिन एयर. Absolutely, solution to the pollution is dilution. डाइल्यूशन भी तभी होगा ना जब हम ये सब चीज़ें अपने लेवल पे जितना हम कर सकते हैं. एयर कंडीशन रूम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी आर इनहेलिंग द
रीसर्कुलेटिंग एयर। पहले जो सैनिटोरियम जो बनाए जाते थे, मुझे लगता है कि एक दिन फिर वही आएगा कि वही सैनिटोरियम वाली प्रॉब्लम, एज फिर दोबारा से आएगी। बिकॉज एज वी आर मूविंग अवे एंड अवे फ्रॉम द नेचर, प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग। आप एक बार खुद भी देख लीजिए कि मतलब कि हमारी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम, कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसका सलूशन नेचर के पास नहीं है। हमने दवाइयाँ बनाई, वो सारे केमिकल्स जो हमने सिंथेटिक आज बना रहे हैं, वो सारे हमने कहाँ से, प्लांट से लिए। आज हम एरोप्लेन की सवारी करते हैं तो वो हमारे पास कंसेप्ट कहाँ से आया, बर्ड से आया। आज हम बैटरीज बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं, तो वो कंसेप्ट कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रिक जो नेचुरली जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी जो एटमॉस्फेयर में है। हम दूसरी और भी one concept is avoidance, but at the same time, just by doing exercises, just by sweating, there are many things it can be done. या सो वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दीज टॉक्सिन्स। अब मैंने कहा नेचुरल कंसंट्रेशन आर्सेनिक का कहाँ है, कुछ रॉक्स हैं, कुछ सॉइल्स हैं। सो वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आर्सेनिक वेस्ट, बर्निंग कोल एंड माइनिंग एंड स्मेल्टिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एंड स्मेल्टिंग, माइनिंग हर कोई जानता है कि हम खुदाई करके बहुत सारे ओर्स निकालते हैं जिससे हम मेटल्स बनाते हैं। स्मेल्टिंग का मतलब ये है कि जब हम किसी भी ओर को निकालते हैं तो हम उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे गर्म करके मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद हम उसको एक प्योर मेटल निकालने के लिए हमारे को कई बार उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स ऐड करने पड़ते हैं टू सेपरेट द प्योर मेटल फ्रॉम द ओर्स। तो इस तरह से जो भी केमिकल्स हैं वॉश आउट करते हैं, वो टॉक्सिन्स जो हैं वो सारे हमारे एटमॉस्फेयर में, वाटर बॉडीज़ में थ्रू इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स दे आर गोइंग इनटू दैट। अब इंडस्ट्रीज़, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारी एक प्लास्टिक और फार्मास्यूटिकल, दीज आर पार्ट एंड पार्सल्स। इंडस्ट्रीज दैट इंट्रोड्यूस्ड द टॉक्सिन्स इनटू द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक के बिना आप सोच सकते हैं रहना? नहीं। सिंथेटिक मटेरियल्स, आपके कपड़े से लेके, आपके बॉक्स लेके, आपकी कार, एवरीथिंग दैट कंटेन्स सिंथेटिक मटेरियल। और आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे एक एडवाइजरी जो अगर आप पढ़ें आपको ज़रूर मिल जाएगी, जब भी आपकी कार एक बाहर आउट में खड़ी है, बाहर एनवायरनमेंट में, और टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा है, जो आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो 40-50 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे में बहुत लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठे शीशे ऊपर कर दिया और एसी ऑन कर दिया। So that is a very wrong concept because these cars contain so many plastic materials and the chemicals are released from these plastic and various other electronic components. So जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो वो सारा highly concentrated air होती है टॉक्सिन से। तो बेस्ट एडवाइस यही है कि चारों शीशे आप नीचे कर दीजिए, 5 मिनट गाड़ी को चलने दीजिए with fan on full speed and then you can raise your windows. So in that case you can just wash out the toxins which were released due to excessive heat. Similarly synthetic materials हो गए, फर्टिलाइजर्स की हम बात कर चुके हैं, पेस्टिसाइड्स की हम बात कर चुके हैं, बाकी आई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयों की इंडस्ट्री। ये बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं कुछ नई दवाइयाँ बनाने के लिए। सो वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते कि दवाइयाँ बनाना बंद कर दिया जाए, पर हम इतना ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं इन कंपनियों से कि जितने भी लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं टू डिस्पोज ऑफ द केमिकल टॉक्सिन्स, दीज कंपनीज शुड एडहर स्ट्रिक्टली टू दीज लॉज, सो दैट ये जो टॉक्सिन्स जो भी निकल रहे हैं, एफ्लुएंट्स जो भी निकल रहे हैं, दीज शुड नॉट गो इनटू द वाटर बॉडीज, इनटू द एनवायरनमेंट। अगर पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में निकल रहे हैं तो फर्स्ट दैट वाटर शुड गो टू द ट्रीटमेंट प्लांट एंड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड गो इनटू द एनवायरनमेंट। सो अभी जो मैंने बताया था कि फीटल डेथ्स एंड प्रीमेच्योर डेथ्स, WHO ने एक एस्टिमेट किया कि मेजर सोर्स ऑफ जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, उसकी वजह से आउटडोर एयर पोल्यूटेंट कैन कॉज 4 मिलियन डेथ्स। और ये कहाँ से आता है ये पोल्यूटेंट्स? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड ऑयल, ऑपरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेस्ट इंसिनरेशन एंड बिल्डिंग हीटिंग। सो दीज थिंग्स यू कैन सी, आउटडोर एयर जो पोल्यूट होगी तो उससे क्या, स्ट्रोक होगा, हार्ट डिजीज़,
lung cancer and chronic respiratory problems. So these are the things, just a summary of things that Absolutely right, sir. So this is how just so these Yes. are the things that we can avoid to some extent, but totally we cannot avoid, because we are living in such a stage that we cannot go back into the old age. So that's all, Dr. Aarti. Thank you very much, sir. So this is very much clear that these toxins, they are related with our physical health. And Dr. Dua has explained very clearly there are certain man-made toxins, there are certain natural toxins. But one thing which I am observing with the psychiatric disorders, the toxin exposure, liver function test, the moment the liver function tests are improving, the brain is improving, and the heavy metal toxin exposure, I'm investigating at times the heavy metals, there are heavy metal exposures. So I'm just sharing my presentation for the toxin exposure and mental illness. So there is evidence-based data कि toxin exposures का और air pollution or any other toxin exposure mental illness के लिए एक relation है. But unfortunately, people understand that this is the only stress which causes mental illness, and they relate it with the counseling, psychotherapies with these illnesses, because no doubt there are many factors that increases the inflammation in our system, and this raised inflammation is related with the brain health issues. वो इन्फ्लेमेशन रेस्ड कहीं से भी हो सकती है. वो इन्फ्लेमेशन अगर उसका इंटेस्टिनल हेल्थ अच्छा नहीं है, वो भी इन्फ्लेमेशन कर सकता है. हार्मोन्स अच्छे नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन कर सकता है. अगर टॉक्सिन एक्सपोजर है, वो इन्फ्लेमेशन कर सकता है. सो एट टाइम्स पीपल गेट डिसहार्टन एंड दे ब्लेम देमसेल्व्स कि मेरा ब्रेन ही ऐसा है. सो माई इंटेंशन इज टू कीप दिस प्रेजेंटेशन इज कि ये तो प्रूवन डेटा है कि इन्फ्लेमेशन इज द कॉज ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, पर वो इन्फ्लेमेशन कहाँ से आ रही है? तो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर उस चीज का टॉक्सिन्स हैं जो ये इन्फ्लेमेशन हमारे सिस्टम में रेज कर रहे हैं, और जो हमारे सिस्टम में रेज इन्फ्लेमेशन हो रही है वो ब्रेन इन्फ्लेमेशन कर रही है. नाउ ये टॉक्सिन्स ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट कैसे करते हैं? टॉक्सिन्स क्या करते हैं? हमारे हार्मोन्स को डिसरप्ट करते हैं. ओबेसिटी एक कॉज है. ये टॉक्सिन्स ओबीस करते हैं. ये टॉक्सिन्स बाकी सब हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस करते हैं. एंड वंस हार्मोन्स आर इम्बैलेंस्ड, ब्रेन शायद किसी भी मेडिसिन से पहले बैलेंस्ड हार्मोन्स हमसे मांग रहा है. हार्मोन्स द सिमिलर वे टॉक्सिन्स हमारी इंटेस्टिनल हेल्थ डिसरप्ट करते हैं, इंटेस्टिनल माइक्रोबायोम डिसरप्ट करते हैं. अगर टॉक्सिन्स के कारण हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो रहा है, अगेन ब्रेन इज ऑन फायर, तो इट डिसरप्ट्स माइक्रोबायोम. थर्ड इज टॉक्सिन्स हमारी एंजाइम्स को सेलुलर लेवल पे इनहिबिट करते हैं. हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सबको कहीं ना कहीं इनहिबिट करते हैं. सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर रहे हैं. सेल टू सेल जो एक ब्रेन के अंदर सेल टू सेल एक कम्युनिकेशन है, वहां डिसरप्शन हो रही है. एंड it also increases the risk of diabetes, and we also know that diabetes has relation with the many mental health issues and dementia. So idea is to consider this fact also, that if inflammation is the cause of psychiatric disorders, so ये raised inflammation multiple area से आ रही है. So we need to consider that toxin is one of the causes. Now as you said clearly, that impact of toxins on the developing brain. Absolutely right, that autism has a connection with heavy metal toxin exposure. There is evidence-based data, and no doubt that अगर इन बच्चों को थोड़ा से एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं, there is evidence-based data कि एंटीऑक्सीडेंट आप डाइटरी देते हैं, न्यूट्रिशन से देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अगर देते हैं, और अगर वो एंटीऑक्सीडेंट कहीं भी इन्फ्लेमेशन डिक्रीज कर रहा है, अब वो इन्फ्लेमेशन कहीं से भी आई, गट हेल्थ गड़बड़ है या आपका टॉक्सिन एक्सपोजर के कारण इन्फ्लेमेशन है, बट यू हैव स्टार्टेड गिविंग एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइट से दे दीजिए या किसी सप्लीमेंट फॉर्म में अगर आप दे रहे हैं, अगर वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करेगा, इट हेल्प्स. सो
तो डॉक्टर No, आरती, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो ऑटिज़्म आपने बताया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ डेवलपिंग ब्रेन, बच्चा तो हो गया, पैदा तो हो गया, लेकिन जो उसका ब्रेन जो था, बिकॉज मदर वाज कंज्यूमिंग टॉक्सिक मेटल्स, जो डैमेज हो चुका उसको तो हम कम नहीं कर सकते। हाँ, आने वाले उसको बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं कुछ हद तक। सर मेरा क्लिनिकल बायोमेडिकल इंटरवेंशंस जो ऑटिज्म की है ना, हाँ, उनके अंदर देयर आर सर्टेन वे कि वी कैन गिव देम सम एंटीऑक्सीडेंट्स। हाँ, एंड इफ वी आर गिविंग सम एंटीऑक्सीडेंट्स और हम वहां पे इन्फ्लेमेशन अगर रिड्यूस करते हैं, दिस इज न्यूट्रिशनल अप्रोच ओनली, नो हार्म इन गिविंग, एंड इफ वी आर एबल टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन इट हेल्प्स, चलिए ठीक है। है ना, it helps. The concern is one is reducing the toxin exposure, one is reducing the toxin exposure, but one is the what I can do when I have this sort of exposure. The other part of the story is now the heavy metal toxins, it has a relation with the other mental illnesses also. So no doubt evidence based data is now we are in two directions. One is live a low toxin living, reduce the toxin exposure as you have explained, but people who have this exposure already, now what they should do? So what we can do to reduce the inflammation? Yoga is a beautiful way, dietary interventions are the beautiful way, certain antioxidants are good, and people can try for infrared sauna is a good way. By sweat you can remove these toxin exposures. So there are certain natural ways by which we can reduce these toxins. These have relation with these hyperactive kids, and at times it is so difficult that people do some counseling. Agreed that counseling is really good, agreed that life skills are really important, but at the same time if there is some exposure we need to work. यहीं पर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मैनी टाइम्स ये जो पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को बिकॉज ऑफ सो मच साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अटेंशन डेफिसिट है या हाइपर एक्टिव हैं, तो हम उसको क्या करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिस्ट भी वही एक अप्रोच जो उनका फिक्स रहता है कि वो अटेंशन के लिए कुछ सेडेटिव्स दे दिए, कुछ इस तरह के ड्रग्स दे दिए, जस्ट वहां तक ठीक है, बिकॉज एट टाइम्स देयर इज एन, वही है ना, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब कि एक थोड़ा सा हम डीप जाएं तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर दीज problems are associated with all man-made kind of toxins which are released into the circulation into the environment. तो हम उसको कम करने की कोशिश करें। अगर हम प्रिवेंटिव की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडीज शायद प्रोबेबली 6 महीने पहले दे शुड नीड टू वर्क ऑन देयर डाइट एंड लाइफस्टाइल बिफोर गिविंग बर्थ टू अ न्यूबॉर्न, सो दैट द इम्यून सिस्टम ऑफ द चाइल्ड शुड बी गुड। वो सब तो हम करते हैं ना, तो हमारे को अब दूसरा एक एस्पेक्ट जो अगर हम आप जो बता रही हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, फिजिकल तो हैं ही हैं, तो मेरे हिसाब से कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल द बर्थ, तो उसका जो आउटर एनवायरनमेंट है दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। एयर कंडीशंस की जगह आपको ओपन एयर होनी चाहिए, फ्रेश एयर, पानी वगैरह, जो अगर वो हो मेरे हिसाब से 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती हैं। सर पर टॉक्सिन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। कंसर्न इज नॉट कि प्रिवेंटिव कि उस टॉक्सिन एक्सपोजर को प्रिवेंट किया जाए, बट एट द सेम टाइम रिमूविंग फ्रॉम द सिस्टम, बोथ वेज removing from the system. That is what my observation is from my traditional medicine. I like yoga because it is really good. At least you're doing something to increase your blood circulation, you're increasing the oxygenation, and suppose you want to go ahead, there are certain modalities like medical ozone therapy, hyperbaric oxygen therapy people are doing. So and any healthy individual can take it to reduce the toxic load. But the concern is right now we are here for the association of these toxins with the physical health and the medical this mental health, and the next time I think we should discuss these things, that how we can live a life with low toxin.
डिक्रीज exposure. टॉक्सिन, नो टॉक्सिन हम तो Low toxin exposure. हाँ, No toxin is not possible, हम्म, but low toxin exposure is possible. So next time I whatever think is possible we should try every effort to reduce the level of toxins in our daily life. absolutely right, sir. Absolutely right, sir. For example, the patients which come to my place, when they ask me about the creams and all, I always tell them use the glutathione cream. This is topical, and this will help your liver for the detoxification. It will enhance your face to liver detoxification. So this is what चीज़ें I यूज़ कर सकते हैं आप अपने घर में लेके देखिए आपके बच्चे कितना मानते हैं। वो तो अभी भी मेरे तो अपने बेटे जो हैं वो दुनिया भर के वो शैम्पू और ये सब चीज़ें, और बाल भी झड़ जाएंगे तो भी नहीं मानेंगे, मना कर देंगे बंद कर दो इसको, नहीं मानेंगे। तो वो जब तक अपने आपके दिमाग में नहीं, तो इट रिक्वायर्स बेसिक एजुकेशन एट द दैट शुड स्टार्ट एट द स्कूल लेवल. school level. These are the things which are present, we cannot avoid, but we can decrease the effect of all these things. Absolutely, sir. Absolutely. You're absolutely right. या तो स्कूल लेवल से, या समझता वही है जिसको डैमेज होती है. हाँ, Now he उसको फिर समझ में तब आता है कि अब डैमेज हो चुका है. नाउ शराब पीने वाले को कहाँ समझ में आती है? जब सिरोसिस हो जाता है तब उसको समझ में आती है कि अब तो डैमेज हो चुका. और लीवर ट्रांसप्लांट के भी कितने साइड इफ़ेक्ट्स और कितने लोग बचते हैं और कितने को क्या होता है प्रॉब्लम, आई हैव ऑलरेडी सीन, यू मस्ट हैव सीन. Absolutely right. Thank you very much, sir, for joining us. Thank you very much for this information. And I would like to request you to share more information next time. How can we reduce toxin exposure in our routine life? Thank you, Dr. Aarti, and thank you all the audience who are watching, and thank you, Dr. Aarti, for inviting me and to allowing me to share my information, knowledge to the audience so that we can reduce the toxin from the environment. So we can just try even a single effort. If we can educate some people, that will be beneficial to many generations to come. Because if we can cultivate this habit into few people and they can keep on transferring that information to next generation, that will be okay. Absolutely, sir. Absolutely. Thank you very much, sir. Okay, thank you, Dr. Aarti. Thanks a lot.